ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے شوہر کو سب بہت مانتے تھے، دور دور سے دعائیں کروانے آتے اور ڈھیر سارے پیسے دے کر جاتے، لیکن پھر اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا تو پیسے کمانے کے لیے میں نے شوہر کو گھر میں ہی دفنا کر مزار بنا دیا۔ اب روز لوگ آتے اور پیسے چڑھا کر جاتے۔ گزر بسر اچھے سے چل رہا تھا جب ایک دن قبر کی صفائی کر رہی تھی کہ جان نکل گئی، کیونکہ قبر کے اندر سے شوہر کی آواز آئی اور وہ بولا، انورا اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں رہتی تھی، کیونکہ اس کے ابا کی وفات کے بعد اس کی ماں کو اس کے ماموں اپنے گھر لے آئے تھے اور وہ اپنے ماموں کے گھر ہی پلی بڑی تھی۔ کیونکہ اس کی ماں جوان تھی تو اس کے ماموں نے اس کی ماں کی شادی دوسری جگہ کر دی تھی اور دوسرا شوہر اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اتفاق سے وہ کنوارا تھا اور پھر ماں کے اس شوہر سے اپنے بچے ہو گئے اور وہ ان میں مگن ہو گئی۔ جب وہ بھائی کے گھر آتی تب وہ اس سے ملتی اور اس کے لیے چھپا کر کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتی۔ انورا کی ماں کہتی، میری بچی، میں ایک بہت مجبور ماں ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے یا میں تمہیں بھول گئی ہوں اور تمہیں یاد نہیں کرتی۔ میں ہر وقت تمہیں یاد بھی کرتی ہوں اور روتی بھی ہوں۔ تم اب اتنی چھوٹی نہیں ہو کہ اپنا آپ سنبھال نہ سکو۔ ویسے بھی ماموں کی بھی 2 بیٹیاں ہی ہیں، لڑکیوں والا گھر ہے، کوئی لڑکا بھی گھر میں موجود نہیں۔ تم ادھر سب سے زیادہ محفوظ ہو اور میرا دل بھی تمہیں ادھر رکھنے سے مطمئن ہے۔ کاش تم ایسے گھر پیدا ہوئی ہوتی جہاں کم سے کم تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوتی۔ میں اگر کسی طریقے سے اپنے شوہر کو تمہیں ساتھ رکھنے پر منا بھی لوں تو میں بھی ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ آج کل سوتیلے باپ کے بھی بہت سے قصے سننے کو ملتے ہیں تو میرا دل ڈرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میرا شوہر اس قسم کا مرد ہے اور نہ ہی سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں ماموں جیسے شفیق مرد کے سائے سے تمہیں محروم کر دوں، جو تمہیں اپنے بچوں کے برابر اہمیت دیتا ہے۔ جو چیز ان کے لیے لاتا ہے وہ برابر تمہارے لیے بھی لاتا ہے۔ جن سکولوں میں اس کے بچے پڑھتے ہیں ان میں تم بھی پڑھتی ہو اور تمہاری مامی دنیا کی واحد مامی ہوگی جو شوہر کی بھانجی کو اپنے بچوں کی طرح پال رہی ہوگی۔ وہ بہت رحم دل عورت ہے۔ جب میں بیوہ ہوئی تو وہی مجھے بڑے خلوص سے اپنے گھر لے کر آئی اور مجھے بہت پیار سے رکھا اور میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ کہتی، خدا نخواستہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ مجھے کہتی کہ یہ تمہارا بھی گھر ہے، تمہارے باپ بھائی کا گھر ہے، جو جی چاہے پکاؤ کھاؤ، جس طرح دل کرتا ہے سامان کی ترتیب بدلو، اپنا دل بہلانے کے لیے جو مرضی رد و بدل کرو۔ شاید تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے میرا اور میری فیملی کا بھلا ہوگا اور شاید تمہارے طفیل ہمیں بھی خوشحالی ملے۔ تمہاری بچی یتیم اور مظلوم ہے، اس کو پیار کرنا، اس کی سرپرستی کرنا بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے برا سلوک کرنا ہمیں دوزخ کے گڑھے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان جس کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہو اسے اپنے اختیارات کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، ورنہ جو اختیار دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے اور بے بس بھی کر سکتا ہے۔ انورا کی ماں جب بیوہ ہوئی تو اس وقت انورا 10 سال کی تھی اور اس کا باپ ایک کال سینٹر میں ملازمت کرتا تھا، گھر بھی کرائے کا تھا۔ اس کی ماں کی 16 سال کی عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی اور جب وہ بیوہ ہوئی تو اس وقت بھی وہ جوان تھا۔ انورا کا سوتیلا باپ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والدین وفات پا چکے تھے اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کے حصے میں اپنا آبائی گھر آیا تھا۔ اس کے محلے کے رشتے والے اسے ہر وقت شادی کرنے اور گھر بسانے کے لیے کہتی رہتی تھی۔ ادھر جب انورا کی ماں بیوہ ہوئی تو اس نے ادھر بھی ان لوگوں کا کہنا شروع کر دیا کہ ابھی یہ جوان جہاں ہے تو اس کی شادی کر دو۔ اس طرح اس نے کسی نہ کسی طرح انورا کی ماں، جس نے دل بہلانے کے لیے قریبی اسکول میں جاب کر لی تھی، اسے آتے جاتے بہانے سے انورا کے سوتیلے باپ کو دور سے دکھا دی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پسند آ گئی اور اس نے فوراً ہاں کر دی اور اس طرح شادی ہو گئی۔ انورا کی جب ماں کی شادی ہونے والی تھی تو وہ اسے گلے لگا کر روتی اور کہتی کہ بھائی میری شادی نہ کرو، میں اپنی بچی کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ مگر بھائی نہ مانا، حتیٰ کہ انورا کی مامی نے بھی شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ماں ہے، بچی کے بغیر کیسے رہے گی۔ تو ماموں کہتے، میں جو کر رہا ہوں سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں، اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، کل بچی کو بیاہ دیں گے پھر اکیلی ہو جائے گی۔ مامی نے پریشانی سے کہا، ہم نے بھی تو بیٹیاں بیانی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہ لے گی، ہم جو ہوں گے۔ مگر انورا کے ماموں کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہ تھے اور روتی دھوتی انورا کی ماں رخصت ہو گئی اور انورا بوکھلائی سی کافی دن پھرتی رہی۔ اس کے ماموں زاد، ایک اس کی ہم عمر تھی اور ایک اس سے چھوٹی تھی، وہ اس کے ساتھ کبھی کھیلتی اور کبھی لڑتی۔ انورا کی ماں بھی اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہی، اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور اسے سمجھاتی رہی کہ تمہاری ماں کی شادی کرنی بہت ضروری تھی۔ وہ بس پٹر پٹر آنکھوں سے دیکھتی اور خاموش ہو جاتی تھی، مامی کی باتیں غور سے سنتی رہتی۔
मामू इन सबको घुमाने फिराने भी लेकर गए तो वो काफ़ी हद तक बहल गई। फिर इसकी माँ जब ब्याह कर गई तो इसके शौहर ने उसे बताया कि इसको अभी तक ज़िंदगी में कोई लड़की पसंद न आई थी, वो शादी ही ना करना चाहता था। मगर जब उसने अनवरा की माँ को देखा तो वो उससे फ़ौरन पसंद आ गई और उसके लिए दीवाना हो गया। अब उसे पाकर बहुत खुश था। वो भी वक्ती तौर पर उसकी मोहब्बत में बहल गई और उसके घर को अपना घर समझकर सजाने संवारने लगी। 2 दिन उसके शौहर ने ऑफिस से छुट्टियां ली हुई थी, उसे बाइक पर लेकर घूमता फिरता रहा। मामू ने उनकी दावत रखनी चाहिए तो उसने पूरे हफ्ते के बाद वीकेंड पर आना ओके किया। जबकि अनवरा की माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, उसे याद कर रही थी और बहुत परेशान थी कि न जाने वो चुप हुई होगी कि नहीं, क्योंकि चलते वक्त वो बिलक बिलक कर रोई थी कि मामा मत जाओ प्लीज़, मामा मत जाओ, या मुझे भी साथ लेकर चलो। बड़ी मुश्किल से मामी मामू का इशारा पाकर उसे एक तरफ को घसीटती हुई लेकर दूर चली गई और गले लगाकर रोते हुए समझाया कि मामा वहाँ पर यहाँ से भी बहुत अच्छी तरह रहेगी, उन्हें बहुत से नए कपड़े, जेवर और मेकअप वगैरह मिलेगा, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी, ऐश करेगी। तब भी वो मुश्किल से चुप हुई थी कि मामू उसे और अपनी दोनों बेटियों को लेकर आइसक्रीम खिलाने लेकर चले गए थे। वो 10 साल की थी, इतनी छोटी भी ना थी कि माँ की जुदाई से बहल सके। उसकी मामू की बेटियां तो बहुत खुश हो रही थी, मगर वो आइसक्रीम खाकर भी उदासी थी। रात को मामी उसके पास सोई, उसे बहलाती रही, स्टोरियां सुनाती रही। आहिस्ता आहिस्ता धीमी आवाज़ में हिचकियों से रोते रोते आखिर वो सो गई। उसकी मामी भी रोती रही और रोते रोते सो गई। मामू भी भांजी को एक बार देखने आया और उसकी भी आंखें गीली थी। फिर अपने कमरे में जाकर रोते रोते वो भी काफ़ी देर के बाद सोया, क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने बहन का रोना धोना और भांजी का बिलकना याद आता रहा। मगर वो ये सोचकर मुतमईन था कि उसने जो भी किया बहन के फायदे के लिए किया है। ये सब रोना धोना वक्ती तौर पर है। अनवरा की माँ को मामी ने फ़ोन पर मैसेज करके बता दिया था कि अनवरा अब चुप हो गई है और नॉर्मल हो गई है, फिक्र न करना, मैं इसके पास ही सोई थी, अब वो खुशबाश है। अनवरा की माँ को मैसेज पढ़कर सुकून आ गया। भाई ने दूसरे दिन ही फ़ोन करके बहन का हाल अहवाल पूछ लिया तो वो कह रही थी कि उसका शौहर बहुत अच्छा है और उसका बहुत ख्याल रखता है। इस बात से अनवरा का मामू मुतमईन हो गया और उसने अपनी बीवी को हदायत की थी कि अनवरा की माँ को बार बार बगैर किसी काम के फ़ोन मत करना, उसे रोज़ फ़ोन करने की आदत न डालना, वरना ना उसका दिल अपने घर में और शौहर के साथ लगेगा और उसको अपनी बेटी की भी याद हर वक्त सताती रहेगी, और ना ही कभी अनवरा की उससे फ़ोन पर बात करवाना, वरना बच्ची को भी पता होगा कि माँ को फ़ोन करना आसान है तो वो फ़ोन पर रो रो कर उसे वापस बुलाने की कोशिश करेगी, तो उसकी माँ ना आ सकेगी और ना उसके बगैर रह सकेगी। शौहर की तरफ से ऐसी सख्त हदायत पाकर अनवरा की मामी ने अनवरा की माँ को भी ये सारी बातें बता दी और कहा कि जो भी हो अब तुम वहीं पर दिल लगाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर शौहर से लड़ोगी तो कभी घर में घुसने नहीं दूंगा। हाँ, इसके साथ आओ और साथ ही वापस चली जाओ, घर में रुकना नहीं है, वरना अनवरा डिस्टर्ब हो जाएगी। हम बड़ी मेहनत और तवज्जो से उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हटाते हैं। अनवरा की माँ सोचती कि मेरा एक ही भाई है, मगर वो ताहयात मेरी जिम्मेदारी उठाने से बचने के लिए मेरी शादी करवा कर हम माँ बेटी को आपस में जुदा करवा दिया। काश मैं भाई के पास पनाह लेने ना आती तो कितना अच्छा होता। मैं कोई मेहनत मुशक्क़त करके अपनी बेटी को पाल लेती और इस तरह से मेरी बेटी भी मुझसे जुदा ना होती, और मेरी बेटी को इस छोटी सी उम्र में पहले बाप की वफ़ात के बाद उसकी जुदाई का गम और अब जीते जी माँ की जुदाई का गम भी उसे सहना पड़ रहा है। उसको इस उम्र में कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं कि वो बेचारी मजलूम बच्ची फ़ोन तक नहीं कर सकती। मेरा सगा भाई ही जब जालिम बन गया तो फिर अपने शौहर से क्या गिला करना है, वो तो है ही पराया खून। क्या था अगर मेरा भाई अपनी बीवी की बात मानते हुए मेरी शादी न करता और मुझे बच्ची से भी जुदा ना होना पड़ता। वो बच्ची जो शुरू से ही अपने सगे माँ बाप को लड़ते झगड़ते मारते पीटते देखती रही, वो बहुत खौफजदा हो जाती थी। उसका सगा बाप उसे प्यार से बात न करता, कहता कि जब से ये मनहूस पैदा हुई है मेरी तरक्की रुक गई है और मेरा और बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा। हालांकि तरक्की उसकी अपनी वजह से रुकी हुई थी कि वो हर बॉस से लड़ाई मचा रखता था, किसी से बनाकर नहीं रखता था। इस वजह से वो बच्ची को भी अच्छे स्कूल नहीं पढ़ा सकती थी और बच्ची उससे डरी डरी रहती थी और उसके गरजने से सहम सी जाती थी। वो अक्सर उससे झगड़ा करते हुए उसे कमरे से मार पीट के निकाल देता था, तो वो शुक्र करती थी कि वो अपनी बेटी के पास सो सकेगी, जो आंधी तूफान में अकेली डरती रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता मामा मामा पुकारती रहती थी। फिर वो शौहर के सोने के बाद चुपके से उसके पास आकर लेटकर तसल्ली देती थी। इसकी अचानक मौत से वो बौखला गई थी। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर भाई ने उसके बहन भाइयों को किया।
जो उसके झगड़ालू तबीयत की वजह से उससे मिलते जुलते न थे। इन सब ने उनकी माँ बेटी की जिम्मेदारी कबूल न की कि उसका अपना सगा भाई जो मौजूद है। अनवरा मामू के प्यार से बहल गई और जल्द इस घर में अपने कज़नों के साथ घुल मिल गई। इसकी मामी भी बहुत अच्छी थी। अनवरा की माँ ने शौहर का इतना प्यार और मोहब्बत देखी तो सोचने लगी कि कम से कम ये अनवरा के बाप से तो बेहतर है जो इसके साथ अच्छी तरह रहता है। मगर जब उसने कभी भी उसका अच्छा मूड देखकर अनवरा को साथ रखने के बारे में पूछा तो उसका मूड ऑफ हो जाता कि मैं पहले ही तुम्हारे प्यार में उसकी शराकत बमुश्किल बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, फिर उसको 24 घंटे तुम इस पर फिदा होते हुए नहीं देख सकता। तुम बस मुझ पर और मेरे बच्चों पर फिदा रहो। तो अनवरा की माँ सोचती कि फिर बेहतर है कि वो मामू के घर में ही रहे, वहाँ कम से कम उसको नफरत भरे रवैये से तो नहीं गुजरना पड़ेगा। अनवरा का सौतेला बाप अनवरा की माँ से बहुत अच्छे मूड में रहता, मगर अनवरा के जिक्र से ही उसका मूड इतना ख़राब हो जाता कि उसने अब अपने घर का सुकून ख़राब न करने के लिए अनवरा का जिक्र तक ज़ुबान पर लाना छोड़ दिया। तन्हाई में उसको याद करके रो लेती। उसकी भाभी एक तरह से उसकी सहेली भी थी जो उसका दर्द समझती थी। उसने उसे समझाया कि तुम अब अनवरा को फ़ोन भी ना किया करो ताकि उससे ये आस भी ना रहे कि तुम्हारा फ़ोन भी आना है। अब वो रफ्ता रफ्ता बड़ी हो रही है तो सब मजबूरियाँ समझने लगी है। अब तुम्हारी एक और बेटी भी हो चुकी है, ऐसा न हो कि एक बेटी को पाने के लिए तुम दूसरी बेटी को भी खो दो। वैसे भी तुम्हारा ये शौहर भी जज्बाती किस्म का मर्द लगता है जो सिर्फ धमकी देने वालों में से नहीं लगता बल्कि अमल करने वालों में से लगता है। अब बेहतर यही है कि तुम यही सोचकर दिल को तसल्ली दे लिया करो कि वो एक महफूज हाथों में इज्जत से रह रही है। अब तुम अपने शौहर और उसके बच्चों पर तवज्जो दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जब अनवरा की माँ की पहली बेटी पैदा हुई तो इसका दूसरा शौहर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार करने लगा और सारे हॉस्पिटल में उसने मिठाई तकसीम की। तो अनवरा की माँ की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और उसे अनवरा की पैदाइश का वक्त याद आ गया। जब उसके शौहर ने अल्ट्रासाउंड में बेटी का सुना तो उस वक्त से उसे कोसने और ताने देने लगा। उसको कहता कि काश अगर ये पहले ही पता चल सकता कि बेटी पैदा होगी तो मैं इसका अबॉर्शन ही करवा देता। इसके जहन में न जाने कैसे ये ख्यालात भरे हुए थे कि बेटी के पैदा होते ही बाप की नज़रें झुक जाती हैं और वो बेबस हो जाता है। अगर ये बड़ी होकर उसके लिए बदनामी का बायस बनी तो फिर ये कहाँ जाएगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। मगर जब उसका दूसरा शौहर अपनी बेटी की पैदाइश पे बहुत खुश हुआ तो अनवरा की माँ ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। अनवरा की माँ ने सोचा कि हो सकता है कि अब शायद उसके दिल में मेरी बेटी के लिए रहम जाग जाए और वो उसे साथ रखने दे। मगर उसके दिल में कोई रहम ना आया और वो इसी तरह हनूस अनवरा से चिढ़ता रहा और उसे मैके भी बहुत कम जाने देता। थोड़ी देर के लिए लेकर जाता और साथ ही वापस ले जाता। वो अनवरा से भी मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से मौका लगाकर मिलती। इसके सामने भी उससे बात तक न करती कि उसका मूड ख़राब हो जाएगा। ये बातें उसने भी और उसकी मामी ने भी उसे समझा दी थी और अब वो समझने लगी थी। अक्सर तो वो अब उनके आने से ज़्यादा सामने भी न बैठती, बस सलाम करती और फिर दूसरे कमरे में चली जाती। वहाँ उसकी माँ मौका लगा कर आती और उसको गले लगाकर रोते हुए बहुत प्यार करते हुए कहती कि अपनी मजबूर माँ को माफ़ कर देना। वो भी अब समझदार और हसास हो गई थी। अपनी छोटी बहन को दूर से देखती मगर पास न जाती, जबकि उसकी कज़नें उसको उठाती और उसके पास से न हटती। रफ्ता रफ्ता अनवरा के शौहर ने ससुराल शाज़ो नादर ही जाना शुरू कर दिया और अनवरा की माँ को अकेले जाने की भी इजाज़त न थी और न भाई उसे मजबूर करता। अनवरा की माँ भी जब उसका शौहर घर ना होता तो अनवरा की वीडियो कॉल पर बात करवाती रहती और अब अनवरा ने भी सब्र करना सीख लिया था। अब उसने अपनी माँ को गिले करने भी छोड़ दिए थे। वो माँ की मजबूरियों को समझने लगी थी। अनवरा की माँ सोचती कि अगर उसका शौहर बड़ा दिल करके उसकी बेटी को पास रख लेता तो वैसे शख्स से शादी करके अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करती। मगर बेटी के रोग ने उससे सारी खुशियाँ छीन ली थी। उसका शौहर कहता कि मैं कंवारा था और तुम भी काश कंवारी होती, तो अगर तुम्हारी बेटी ना होती और तुम शादीशुदा होती तो मुझे ये एहसास भी ना दिल में उजागर होता कि मेरी किस्मत में शादीशुदा और एक इतनी बड़ी बच्ची की माँ ही लिखी थी जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसे छोड़ भी नहीं सकता। काश ये भी कंवारी होती या बच्ची की माँ ना होती। वो कभी उसे गिला भी कर देती कि तुम जानते तो थे कि मैं शादीशुदा और एक बच्ची की माँ हूँ, फिर किसी कंवारी से कर लेते। वो कदरे शर्मिंदा होकर कहता ये दिल जो कमबख्त तुम पर ही आ गया था, किसी और की तरफ माइल ही ना होता था। अनवरा की माँ ने 2 साल के बाद बेटे को जन्म दिया तो उसे दिल में बहुत खुशी महसूस हुई कि उसके बेटे की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। उसके शौहर ने इसी तरह बेटी जितनी ही खुशी मनाई और कहता कि अगर दोबारा बेटी भी होती और तुम अब की तरह अब और बच्चे पैदा करने के काबिल भी ना रहती, फिर भी मुझे बेटा ना होने का कोई गम ना होता, क्योंकि मेरे नज़दीक बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं।
اس کی اس بات سے انورا کی ماں خوش ہو جاتی، دن رات اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل ملازمہ رکھی رکھتا اور اسے کام نہ کرنے دیتا کہ تم بچوں کی تربیت میں وقت صرف کرو، نہ کہ صرف کچن میں ہی بوڑھی ہو جاؤ اور بچے خود ہی پلتے رہیں۔ وہ کہتا بچے پلنے سے نہیں رکتے، چاہے بھوکے ننگے رہ کر زندگی گزارے مگر ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں کہ جو ہر وقت اپنی بیوی کو اپنی خدمتوں میں ہی لگائے رکھتے ہیں اور بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈال کر اچھا کھلا پلا کر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے فرائض پورے کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کی قربت اور توجہ اور وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ کچھ مرد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے دہشت زدہ شکل بنا کے رکھتے ہیں کہ بچے ان کو دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو کر ان کے پاس بھی نہیں بھٹکتے، اور مائیں بھی ان کو کمرے سے بھگا دیتی ہیں کہ کمرے سے باہر جا کر کھیلو، اب وہ غصہ کریں گے۔ اور انورا کا ستیلا باپ اپنے بچوں پر جان چھڑکتا اور گھر آتے ہی ان سے کھیلتا، ان کو وقت دیتا۔ انورا کی ماں سوچتی کاش میری ایک شادی ہوئی ہوتی اور وہ بھی اسی سے، اور میری بد نصیب بچی انورا بھی اسی کے گھر پیدا ہوئی ہوتی۔ اب میں دنیا کی خوش قسمت عورت ہوں کہ جس کا شوہر اچھا بھی ہے اور خوشحال بھی، مگر فقط اپنی بیٹی کی بدقسمتی کو دیکھتے ہوئے وہ خوش بھی نہیں رہتی۔ اس کا جی بھی چاہتا کہ کم سے کم عید پر ہی صحیح وہ اس کے لیے کوئی شاپنگ کر سکتی، مگر وہ شوہر کے موڈ خراب ہونے کے ڈر سے اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ کم از کم عید وغیرہ پر تو اسے اپنی بیٹی انورا کے لیے شاپنگ کرنے دیا کرے۔ اس کے ماموں ہی اسے اپنی بچیوں کے ساتھ ویسے ہی شاپنگ کرواتے جیسے وہ اپنی بیٹیوں کی کرتے۔ اس کے لیے بھی وہی چیزیں لاتے جو وہ ان بچیوں کے لیے لاتے تھے، کبھی اس میں اور اپنی بچیوں میں فرق نہ رکھتے تھے۔ وہ بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھی جس میں اس کے ماموں کی بیٹیاں پڑھتی تھیں۔ اب وہ اس سے لڑتی بھی نہ تھی، اس پر ترس کھاتی تھی کہ اس کی ماما اس سے دور چلی گئی ہیں۔ انورا کے ماموں اچانک شادی کر کے ایک عورت کو گھر لے آئے کہ ان کو بیٹا چاہیے، اور وہ پہلے بھی تم سے بیٹا پیدا کرنے کے انتظار میں کافی وقت برباد کر چکے ہیں۔ وہ عورت درمیانی عمر کی تھی اور طلاق یافتہ تھی۔ مامی کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اچانک اس کا شوہر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، جس نے اسے کبھی بیٹا نہ ہونے کا تانا بھی نہ دیا تھا اور جو اپنی بیٹیوں پر جان دیتا تھا۔ مامی سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور اس کے بھائی آئے اور اسے اور بچیوں کو ساتھ لے گئے، اور انورا کو انہوں نے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ اس بے وفا شخص کی بھانجی ہے۔ حالانکہ مامی نے انہیں کہا بھی کہ اس میں اور اس بچی کا کیا قصور ہے۔ مامی نے انورا کی ماں کو روتے ہوئے فون کر کے ساری بات بتائی اور بولی کہ آ کر اپنی بچی کو یہاں سے لے جاؤ، نہ جانے یہ کس کماش کی عورت ہے، تم اس کے پاس اسے مت چھوڑو۔ انورا کی ماں تڑپ گئی، اسے اپنے بھائی پر بھی بہت شدید غصہ آیا جس نے اپنی ہیرے جیسی بیوی اور پھول جیسی پیاری بچیوں کی قدر نہ کی۔ انورا کے ستیلے باپ نے جب سنا تو بیوی کو اس کے بھائی کے حوالے سے بہت تانے دیے۔ جب بیوی نے حتمی انداز میں ڈٹ کر کہا کہ وہ اب اپنی بیٹی کو کسی لاوارث کی طرح کسی دوسری عورت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، نہ جانے وہ عورت میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی پھرے، کہیں اس کو بیچ ہی نہ دے۔ اس کے شوہر کو بہت غصہ آیا اور وہ نہ مانا کہ وہ اپنے ماموں کے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم نے اسے لانے کی بات کی تو میں بچے چھین کر تمہیں طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا۔ اب بتاؤ کہ تمہیں یہ بچے چاہیے کہ وہ بچی؟ انورا، جس کی وجہ سے میں ایک ذہنی کرب میں مبتلا رہتا ہوں، میں ایک شرط پر ہی اسے لانے کے لیے تیار ہوں۔ انورا کی ماں تڑپ کر جلدی سے بولی کہ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کی شادی کرنی ہوگی، اس سے زیادہ میں اسے نہیں جھیل سکتا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی کہ ابھی تو وہ بمشکل 16 سال کی ہے، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا اور وہ مجبوراً مان گئی، اور بھائی کے گھر جا کر اسے کافی برا بلا سنا کر آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ بچیاں جوان ہیں اور ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی کا ڈھونگ رچایا، اور وہ بھی اس جیسی عورت سے جو کسی طرح بھی خاندانی عورت نہیں لگ رہی۔ میری طرح آپ کی بیوی کے بھائی بھی اگر آپ سے خلا لے کر اس کی دوسری شادی کروانے لگے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ عورت جو کافی تیز ترار سی لگتی تھی، اسے بڑی معنی خیز نظروں سے مکارانہ مسکراہٹ سے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ انورا کا ماموں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑا بہن کی ڈانٹ پھٹکار سنتا رہا۔ انورا کا اس نے سامان پیک کیا اور اسے لے کر گھر آ گئی۔ انورا بھی اب کافی سمجھدار ہو چکی تھی، صبر کرنا سیکھ چکی تھی۔ وہ اب ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ ماں نے انورا کو اس کے سوتیلے باپ کی شرط بتا دی تو وہ بولے، ماما آپ مجھے کسی اندھے فقیر سے بھی بیاہ دیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، میں تو ویسے بھی اب ایک زندہ لاش کی طرح جی رہی ہوں، میری نہ اپنی کوئی حیثیت ہے نہ کوئی مقام، نہ میں اپنی مرضی سے کسی کے پاس رہ سکتی ہوں نہ اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، مگر انورا بالکل سپاٹ رہی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ بولی، ماما میں بچپن سے ہی رو رو کر تھک چکی ہوں، اب تو آنسو بھی میرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ورنہ پہلے وہ کم سے کم بہہ کر میرے غم کی شدت کو کم کر دیتے تھے۔
मगर अब तो वो भी बेवफा हो गए हैं। इसकी गहरी संजीदगी देखकर माँ ने अपने रोने पर काबू पाया और उसे बहुत चूमा और गले लगा लगा कर अपनी ममता की प्यास बुझाती रही। मुलाजमा चाय बना कर ले आई। वो चाय पीने लगी। माँ ने अपने बच्चों को बताया कि ये तुम लोगों की आप ही है। तो वो जो पहले हैरत से माँ को रोता देख रहे थे, अनवरा की तरफ खुशी से मुस्कुरा कर देखने लगे। वो उन्हें बहुत प्यार करने लगी। वो उसे ला लाकर अपने खिलौने दिखाने लगे। शाम को जब उसका सौतेला बाप आया तो अनवरा ने आहिस्ता से उसे अस्सलाम वालेकुम अंकल कहा तो वो हल्का सा जवाब देकर खामोशी से बगैर बात किए इधर से चला गया और कमरे में बीवी को बुलाकर धमकी देते हुए बोला कि तुम्हारे पास पूरे 30 दिन हैं। इसी दौरान इसका निकाह करके तुमने इसे रुखसत करना है। इसकी शादी पर जो खर्चा चाहो कर सकती हो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। एक बड़ी रकम कल मैं तुम्हें इसकी शादी की शॉपिंग के लिए दे दूंगा। 31 दिन अगर हुआ तो तुम्हें तलाक से कोई नहीं बचा सकता और बच्चे भी छीन लूंगा। अनवरा, जिसको सारी आवाज़ें आ रही थीं, इसने माँ से कहा कि माँ, शादीशुदा रंडवा भी बूढ़ा भी अगर मिलता है तो प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्द अज जल्द रुखसत कर दो। मेरा यहाँ एक एक लम्हा अज़ाब में गुजर रहा है। ये बहुत ज़िद्दी से लगते हैं। ये जो कह रहे हैं कर गुजरेंगे। अनवरा की माँ अपने जानने वालों से रिश्ता करवाने वाली का पूछने लगी। उसे इत्तेफाक से वही औरत मिल गई जिसने अनवरा के शौहर का रिश्ता उससे करवाया था। उसने मायूसी से कहा कि इतनी जल्दी तो अभी कोई रिश्ता मुयस्सर नहीं, मगर एक रिश्ता है। लड़का 30-35 साल का है, बहुत नेक है, हिसाब किताब और नूरी इल्म में माहिर है। उसके बहुत से मुरीद भी हैं। अब उसमें शादी करने पर इसरार कर रही हूँ और वो मान गया है। अनवरा झट से बोली, हाँ जल्दी से आप उससे मेरा रिश्ता करवा दें प्लीज़, मुझे कुछ और नहीं सुनना। रिश्ते वाली मासी ने अनवरा की माँ की तरफ देखा और बोली, ये रिश्ता भी हाथ से चला गया तो फिर इतनी जल्दी और ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। वैसे भी इसके लिए चंद और लोगों ने भी कहा है, मगर चूंकि मुझे तो अपनी फीस से मतलब है और जो ज्यादा देगा मैं तो उसे ही रिश्ते का बोलूँगी। अनवरा की माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, और कुछ रुपए उसकी हथेली पर रखती है और वो वादा करके अपना फ़ोन नंबर देकर चल पड़ी। अनवरा की माँ को दूसरे दिन ही उसका फ़ोन आ गया। अनवरा ने माँ को सख्ती से कहा कि वो अपने सौतेले बाप की कमाई से 1 टके का जहेज नहीं लेगी, 3 कपड़ों में जाएगी। उसने रिश्ते वाली मासी से भी यही कहा तो वो खुश होकर बोली, अरे उसे तुम 3 कपड़ों में ही चाहिए। अनवरा खुश हो गई। उसका सौतेला बाप रात देर से घर आने लगा और उसको बाजुकात कई कई दिन न मिल पाता। वो खुद भी सामने जाने से कतराती। बच्चे उससे बहुत मानूस हो गए थे। वो उसके पास सोने की जिद करते, मगर माँ डर कर न सुलाती कि उनका बाप बच्चों को अपने बाजू पर सुलाता है। रात को उठ उठ कर इन पर कंबल डालता रहता है। अनवरा की शादी के लिए चंद लोग ससुराल से आए। उसका बाप निकाह करवाने में पेश था। उसने पैक लंच बॉक्स मंगवा लिए थे और उनको जूस और लंच बॉक्स दिए और बोला कि आप लोग निकाह करके घर जाकर खाना। उसने आधे घंटे में इनको फारिग कर दिया। अनवरा इन्हीं का लाया हुआ जोड़ा और जेवर पहनकर खुद ही तैयार हुई। जब निकाह हो गया तो रुखसती के वक्त अनवरा की माँ ने शौहर से कहा कि कम से कम मुझे अपने दामाद का चेहरा तो दिखा दो, मगर वो बोला ये काम पहले करना था, इसे देखकर हाँ करनी थी। मगर चलते वक्त जब उसने अनवरा को दरवाज़ा खोल के आगे बिठाया और खुद साथ बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी तो उसे देखकर अनवरा की माँ शिद्दते गम से बोली, ये तो 60 साल का बाबा है। ये कहकर वो गश खाकर गिरी और बेहोश हो गई। इसका शौहर उसे अस्पताल ले गया। रात जरा बेहतर हुई तो अनवरा को इसने फ़ोन किया तो अनवरा ने बताया कि मामा, उसका शौहर जवानों से भी ज़्यादा अच्छा है, इसका बहुत ख्याल रख रहा है। वो कहता है कि वो अभी चिल्ला काट रहा है, 40 दिन तुम्हें अलग सोना पड़ेगा। इसके मुरीद उसे बहुत मानते हैं, बहुत कीमती तोहफे उसे देते हैं। एक ने तो गाड़ी भी भिजवाई थी। मैं बहुत खुश हूँ, सारा पैसा मेरे कंट्रोल में दे दिया है। चिल्ले का सुनकर अनवरा की माँ तसल्ली में हो गई। इसके बाप को भी एहसास हो गया। उसने माफ़ी मांगी और बीवी ने खुशी से अनवरा को फ़ोन किया और सब बताया। तो अनवरा ने कहा कि अब मुझे किसी के प्यार और सहारे की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे फ़ोन ना करे, क्योंकि मैं इस सिम को बंद करने लगी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलने की किसी को ज़रूरत नहीं है, और सिम बंद कर दी। माँ को शौहर ने समझाया कि उसे कुछ वक्त दो, वो वैसे भी अब अपने शौहर की पनाह में महफूज है। उससे कुछ वक्त के बाद हमारी याद आएगी, फिर हम उससे राब्ता कर लेंगे। मेरे बच्चे उसके लिए तड़प रहे हैं। एक थोड़े अरसे में उसने उनको कितना प्यार दिया और एक मैं जालिम बना रहा। वो रोता रहा और बीवी से माफ़िया मांगता रहा। बीवी ने उसे माफ़ कर दिया। अनवरा के मामू की दूसरी बीवी कुछ कीमती जेवरात चुरा कर जाने लगी थी कि बर वक्त उसे पता चल गया। उसने उसे पुलिस के हवाले करना चाहा तो वो माफ़िया मांगने लगी, तो मामू ने उसे तलाक दे के घर से निकाल दिया और अपनी पहली बीवी से रो रो के माफ़ी मांग के घर ले आया, क्योंकि वो उम्मीद से थी। अनवरा की शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता गुजरा था कि उसका शौहर अचानक दिल के अटैक से मर गया। अनवरा नकाब करती थी और मुरीद उसकी गुलामों की तरह हुक्म मानते थे।
अनवरा ने किसी को भी इत्तला न दी और अपने शौहर की कब्र अपने घर के सेहन में दफन करके मज़ार बना दिया। उसके मुरीद आते और बहुत से पैसे चढ़ाते। अनवरा इन पैसों को जमा करके गुजर बसर करने लगी। अब इसके शौहर का 40वां नहीं हुआ था। वो अपने शौहर की कब्र पर बैठी फातिहा ख्वानी करती रहती, इसकी सफाई भी खुद करती। एक दिन उसे शौहर की कब्र से आवाज़ आई। उसने उसे अपना वहम समझा और दोबारा फिर से उसने ध्यान दिया तो आवाज़ आई कि मुझे बचा लो। वो नींद के गलबे में थी। उसे समझ न आई कि वो पढ़ते पढ़ते अक्सर वहाँ सो जाती थी। उसे ख्वाब आया कि मुझे कब्रिस्तान में दफन करो। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने मुरीदों को ये ख्वाब सुनाई तो उसको कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। इधर घर में मदरसा तामीर करवा के वक्फ कर दिया और उनके ख़ास मुरीदों को इसका निगरान मुकर्रर कर दिया। जो आमदन होगी वो एक फलाही अदारा बनेगा और उससे गरीब बच्चों के लिए दरसो तदरीस का काम शुरू किया जाएगा। इसके मुरीदों ने उसके काम का बेड़ा उठा लिया और सारा हिसाब किताब उसके बैंक अकाउंट में जमा होता और वो इनको ज़रूरत के मुताबिक देती। उसने माँ को फ़ोन पर सब अहवाल बताया तो माँ उससे मिलने के लिए बेताब हो गई। उससे वो अपने घर ले आई तो उसके बहन भाई बहुत खुश हुए और सौतेले बाप ने माफ़ी मांगी तो उसने माफ़ कर दिया। मामू मामी से मिलने गई तो वो सब इससे मिलकर बहुत खुश हुए। सौतेले बाप के भांजे से अनवरा की शादी हो गई और वो नौकरी के सिलसिले में उन्हीं के घर रहने लगा। वो अनवरा पर जान फिदा करता। अब अनवरा माँ के पास भी थी और बाप उससे अंकल नहीं पापा कहलवाता और अब उसकी पापा से भी दोस्ती हो चुकी थी। वो उसे बेटी बेटी कहते न थकता और अनवरा की माँ सोचती ये सब इन दोनों के सब्र का फल है कि बेटी ब्याह कर भी पास ही रह रही है और अब हर वक्त उसकी नज़रों के सामने रहती है और उसकी आंखों को ठंडक मिलती है। उसके बच्चे पर नाना जान छिड़कता है। उसके शौहर के वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं और बाकी बहन भाई शादीशुदा हैं, इसलिए अब बकौल उसके पापा के अब वो हमेशा उनके साथ रहेगी क्योंकि उसका शौहर भी उसका सगा भांजा था। छोटे बहन भाई उसके दीवाने थे और वो भी अब उनको बच्चों की तरह प्यार करती। मामू को अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा तो वो कहते कि ये सब अनवरा के साथ अच्छा सलूक रखने का ऊपर वाले ने इनाम दिया है। उससे अब भी मामू के घर जाकर ऐसे लगता जैसे वो मैके आई है। मामी उससे अब भी उतना ही चाहती और हर ईद पर मैके की तरह उसे अपने सब घर वालों समेत घर दावत पर बुलाती और इज्जत और मान देती। उसकी दोनों कज़नों की अच्छी जगह शादियां हो चुकी थीं और वो भी उससे बहुत प्यार करती और मामी कहती कि मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। अनवरा की ज़िंदगी अब सुखों से भर चुकी थी और वो अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।